Hello. Hello. Is this Saket Kumar Yes, sir. speaking? This is Saket Kumar. Good afternoon, sir. Myself Saket. Just a minute. Just hold on. ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲଟିକୁ होल्ड रे रखिछंती दयाकरी लाइन रे रुहंतु। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲଟିକୁ होल्ड ରେ ରଖିଛंती ଦୟାକରି ଲାइन ରେ ରୁହନ୍ତୁ। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे Yes, Saket. Sorry. Yes, sir. Yes, okay. Then just be comfortable. In which language you are comfortable? English or Hindi? Any language, sir. Both Any languages. language. Okay. ठीक है। तो आप अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं? जी, अभी कहाँ पे आप एंगेज हो? अभी नागालैंड, नागालैंड। विच कंपनी? श्वेता टेक्नोपाइल कंसल्टेंसी, Future Technology. STCPL. Okay. So what are the functions you are doing? I am doing here a DPR project. I am working as a site highway engineer. मतलब आप ऑफिस जॉब है ना, साइट में काम? जी, जॉब मैं इनके गाजियाबाद ऑफिस में I had joined, but later they transferred me to site. So I am controlling the project from site only. But I am doing everything from here. No, means I am writing report also, MPR also, giving reply to administrative officers also. So doing all these things. So then you are making detailed project report, correct? Yes, sir. Okay. Then what are the components you are putting in detailed project report? Detail project report, mainly we are making BOQ and then BOQ is the final thing after estimation. Okay. So my question is basically कि आप क्या components उसमें डालते हो रिपोर्ट में, और क्या चीज? और तो obviously आप रिपोर्ट दे रहे हो, मतलब estimation रहेगा, डिजाइन रहेगा, that is secondary part. I will go to that part also. Okay. Yes. So before that, I want to know what are the other design criteria or report you need to incorporate in that document. Inventory details we are providing. What is existing site details, everything of the present site. Fine. Yes, fine. That also, and then the detail of that area, how is the weather. Okay, fine. Okay, yes. Next. And then the cost of things like material lead chart, those things also we are providing. Yeah, fine. Next. Then the estimated bill and estimated design. Yeah. Suppose you are designing a road, okay. Then definitely some culverts or bridges may come. Yes, sir. Culvert and bridges inventory is a part of inventory only, no, sir. Yeah. Yes. Then definitely you need hydrological data, correct? Yes, sir. Hydrological data, environmental conditions data. That also a part of survey. So maps वगैरह वो सब चाहिए. Yes. Correct? Yes, sir. Okay, fine. कभी आप हिली रोड डिजाइन किए हो? हिल रोड ये हिल रोड का एरिया ही है ना सर, हिली एरिया ही है, तो ये डिजाइन तो हिल. Okay, yes, you are working in Nagaland, na? Yes. Okay, then what is the difference while you are designing for a plain area and okay, आप रोलिंग टेरेन, प्लेन टेरेन एंड हिली टेरेन में क्या परसेंटेज बोल दो थोड़ा? 0 to 10 प्लेन एरिया के लिए, 10 to 25 for रोलिंग ट्रेन, 25 to 65 for steep mountainous. 25 to 65. Yes, sir. Okay, then. And if it is more than 65, then it is steep. Yeah. Okay, then what is the maximum super elevation you may provide in hilly road? Hilly road maximum super elevation. In plain road it is 7%, maximum hilly road 10%. 10% in hilly road, correct? Yes. In plain road? 7%. Okay. So plain road 7% and hilly road 10%. Why it is more? Because we have to manage on hills. We have to manage something now.
like the train condition is not so plain and we cannot cut hill so much on hills, so we can adjust with 10%. यस, ओके फाइन। तो अभी मेरा क्वेश्चन अभी शुरू होगा, ठीक है। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि आप जब हिली रोड डिजाइन कर रहे हो तो आप बोले कि 10% ले रहे हो बिकॉज ऑफ आपका प्रोफाइल का वजह से, बराबर? जी ठीक है। तो माय क्वेश्चन इज, तो अगर अल्टीमेटली आपका डिजाइन क्राइटेरिया या फिर कंफर्ट कंडीशन तो सेम ही रहेगा। आप हिली में जाओगे तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट आपको फील होगा गाड़ी चलाते वक्त, बराबर? जी ठीक है। तो माय क्वेश्चन इज कि अगर आप हिली रोड में आपका मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 10% तक अलाउ करते हो, देन वेयर यू आर कंप्रोमाइजिंग दैट पार्ट? आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? कि आप कौन सा वैल्यू घटा रहे हो सो दैट यू मे गो अप टू 10%? we are reducing the design speed ना। हाँ, वही रिड्यूस कर रहे हो जो मतलब कौन सा पार्ट में आप घटा रहे हो सो दैट यू कैन गो अप टू द 10%? हम डिजाइन स्पीड लिमिट को जो हम कम कर रहे हैं इसके वजह से वेरी गुड, super elevation- यू हैव टू लिमिट द स्पीड। वेलोसिटी में हम लोग रिड्यूस करते हैं, बराबर? जी, यहाँ हम पे जो अपना- मैक्सिमम डिजाइन स्पीड है वो कम करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। इस वजह से हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ओके ओके, देन आप फ्लेक्सिबल रोड डिजाइन के लिए कौन सा कोड यूज करते हो? IRC 37 वेरी गुड। एंड फॉर रिजिड के लिए 58 58। 73 किसके लिए? 73 फॉर हिल रोड एंड एंड नहीं, वर्टिकल और थोड़ा कर्व SP 23 73 अगर हिल रोड के लिए होगा तो फिर 23 किसके लिए है? SP 23 फॉर वर्टिकल कर्व्स। वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल कर्व? Horizontal curves we can see that also in 73 38 38 38 73 में भी है। 73 में लिए आपका जो गाइडलाइन है फॉर 2 लेन के लिए है, एंड 84 एंड 87 फॉर 4 लेन एंड 6 लेन, बराबर? जी। ओके। अर्बन रोड के भी डिजाइन किए हो? नहीं सर, अर्बन रोड नहीं, हम मेरा ओके, ट्रेसर के ठीक है, तौर कोई पे बात ज्वाइन नहीं, हुआ वो भी है। कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 86 में है वो, ठीक है, आप जा सकते हो। जी ठीक है, 86 एक बार पढ़ लो। अर्बन रोड इज इजियर, नॉट अ बिग डील। ओके सर। ओके, आप मुझे और एक चीज बताओ। जी अगर मैं फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, जी then what are my initial documents I need? मतलब what are the initial readings I have to take? What are the initial survey I have to take? इनिशियल सर्वे डिजाइन क्राइटेरिया क्या मैं रहेगा? समझ गया। सबसे पहले तो हमें जो है साइट से TVC का डाटा लेना होगा और फिर जो है CVR फाइंड करना होगा और CVR और इस TVC के डाटा के आई आस्क्ड फ्लेक्सिबल पेमेंट ना, ओके, सीवीआर फाइन करना होगा। जी CVR फाइंड करना होगा। और when it is extends to rigid payment तो आप क्या फाइन करोगे? MSA जो होता है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल की वैल्यू, वो हम TVC के डाटा के अकॉर्डिंग ले लेंगे, फिर CVR फाइंड कर लेंगे और फिर IRC 37 में जो है तो इसके फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन के क्राइटेरिया है, आप उसको IIT फेब से डिजाइन कीजिए और बाद में इसमें टेबल दिया हुआ है कि कैसे आप जो है तो MSA और CVR के आधार पर अलग अलग लेयर्स की कितना थिकनेस देंगे वो टेबल से मैच कर सकते हैं। ओके, माय क्वेश्चन इज IIT फेब में जब आप डिजाइन करते हो तो एक पार्ट आप स्ट्रेन के लिए लेते हो, एक पार्ट आप वर्टिकल स्ट्रेस के लिए लेते हो? जी जी बराबर जी। ठीक है, तो स्ट्रेन के लिए कौन सा पार्ट लेते हो, स्ट्रेस के लिए कौन सा पार्ट आप मतलब लेते हो नहीं, कौन सा आप लेयर प्रोवाइड करते हो फॉर स्ट्रेन के लिए एंड कौन सा पार्ट प्रोवाइड करते हो स्ट्रेस के लिए? स्ट्रेस के लिए हम सबग्रेड का लेयर स्ट्रेन कहाँ पे आता है? स्ट्रेन मतलब टेंसाइल फोर्स स्ट्रेन कहाँ पे आता है? बिटुमिनस कोर्स के लेयर के जस्ट Very नीचे good. टॉप लेयर और सबग्रेड के लेयर पे हम स्ट्रेस ले। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। जी ओके, बॉटम अप क्रैक एंड टॉप डाउन क्रैकिंग क्या डिफरेंस होता है? क्या सर? बॉटम अप क्रैकिंग, टॉप डाउन क्रैकिंग। बॉटम ऑफ क्रैकिंग मींस डे टाइम में कौन सा होता है, नाइट टाइम में कौन सा होता है? क्या? डे टाइम में कौन सा आता है, नाइट टाइम में कौन सा आता है? बॉटम अप क्रैकिंग कब आता है? या फिर आप टेम्परेचर के हिसाब से भी बोल सकते हो, बोलो। जैसे सर डे टाइम में टेम्परेचर चूंकि सरफेस पे ज्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन में हमारा जो सरफेस का मटेरियल वो फैलने का कोशिश करता है तो कंप्रेशन हमारे टॉप पे आ जाता है और नाइट टाइम में जस्ट इसका अपोजिट होता है। ओके, नाइट टाइम में अपोजिट होता है, ठीक है जी ठीक है। तो टेम्परेचर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली हो जाता है, बराबर? जी
ओके, अगर मैं डिजाइन कर रहा हूँ वैली कर्व, देन व्हाट विल बी माय डिजाइन क्राइटेरिया? वैली कर्व अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो में तो एसएसडी की वैल्यू के आधार पे डिजाइन होगा और दूसरा कंफर्ट कंडीशन के आधार। सॉरी, एस मींस स्टॉपिंग व्हाट इज साइड द डिस्टेंस या डिजाइन ओएस क्राइटेरिया, मतलब साइड कौन डिस्टेंस। कौन सा चीज में मैं कंसंट्रेट करूँ कि हाँ वैली कर्व में डिजाइन कर रहा हूँ तो दीज आर द प्रॉब्लम्स आई फेस, तो वैली उसके लिए कर्व मैं करूँगा। डिजाइनिंग के लिए सर हमें एसएसडी को देखना होगा या फिर ओएसडी को, साइड डिस्टेंस को और कंफर्ट कंडीशन को। कंफर्ट कंडीशन, ओके। यस तो ये जब मैं सबमिट करने जाता हूँ तो मेरा कंफर्ट कंडीशन नॉट ए फैक्टर, बराबर? जी, सबमिट कर में हमें कंफर्ट कंडीशन का कोई जरूरत नहीं होता क्योंकि जरूरत नहीं होता, बैलेंस व्हाई? हो जाता है। जी, व्हाई? कैसे बैलेंस होता है कि कौन किसको बैलेंस करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है तो वेट को बैलेंस कर दे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो किसको बैलेंस करता है? वेट को व्हीकल वेट के को वेट बैलेंस को करता बैलेंस है। कर दे। इस वजह से हमें वहाँ पे डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। वैली कर्व में हमें इन दोनों क्राइटेरिया को देखना पड़ता है, मैं तो साइड वैली डिस्टेंस कर्व, और जी। ओके। तो सबमिट कर में हम लोग का डिजाइन क्राइटेरिया, सॉरी वैली कर्व में क्या, वैली कर्व में हम लोग बोल दिए, सबमिट कर में हम लोग का क्या डिजाइन क्राइटेरिया आएगा? सबमिट कर्व में सिर्फ साइड डिस्टेंस आएगी। ओके, फॉर्मूला याद है? यस सर। ओके, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट फॉर्मूला एक्चुअली, नो छोड़िए, सर, हमें याद है जाना NS² अपन 2h + 2h tan अल्फा ये सब ओके, पूरा याद है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जी बट वो कौन सा फॉर्मूला है? वो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है तो नॉट नीडेड एक्चुअली, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल है। जो हम लोग का कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला जैसे आपका सुपर एलिवेशन, उसका जी कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए, बराबर? जी। नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता है? नेगेटिव सुपर एलिवेशन नेगेटिव सुपर एलिवेशन थोड़ा सोच के बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। जैसे सुपर एलिवेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं किस लिए बताएं? हाँ, कर्व पे जो है सो सेंट्रीफ्यूगल कर्व फोर्स में को होता है, बैलेंस जैसे आप करने के बोले लिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, आपका गाड़ी पलट जाएगा हाँ, स्पीड ज्यादा होने से, आउटर बराबर? पार्ट को जो है तो थोड़ा सा रेज कर देते हैं तो तो मैं मैक्सिमम, जैसे कि आप बोले कि सपोज प्लेन टेरेन है तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इज 7%, बराबर? यस। ठीक है, ऐसे होके सपोज मैं 14% प्रोवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा हम आपका? और देखिए, फिर तो ओवर टर्निंग हो जाएगा ना। मैं हाँ, तो दैट इज सो कॉल्ड नेगेटिव सुपर एलिवेशन। यस सर क्लियर? दैट इज नेगेटिव। व्हाट इज सेटबैक डिस्टेंस? जी, सेटबैक डिस्टेंस जो है सो ऑब्जेक्ट को कितना अच्छा से आप देख सकते हैं कर्व पे, वही क्राइटेरिया देता है। कैसे निकलते हैं, एनी आइडिया कुछ दे सकते हैं थोड़ा बहुत? जी, सेटबैक डिस्टेंस वैसे तो आप सर फोन पे है ना, कर्व पे जो है तो हमें उसके सेंटर से जो है तो अगर आप डायरेक्ट इसमें एक अल्फा वैल्यू लेते हैं, एक थीटा वैल्यू लेते हैं, कैन यू एक्सप्लेन ए बिट? क्या सर? थोड़ा खाली मुझे जब हम लोग सेटबैक डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, एट दैट टाइम वी टेक सम अल्फा वैल्यू एंड सम थीटा वैल्यू। व्हाट इज दैट अल्फा, व्हाट इज दैट थीटा? थोड़ा ही मुझे खाली बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अल्फा और थीटा वैल्यू। ओके, तो वो जो कर्व है उसका जो कोड सेंटर पे जो मिल रहा होता है उसका रेडियस, उसका जो आधा पार्ट होता है। टेंजेंट के टर्म यूज कीजिए। कर्व का टेंजेंट दोनों साइड से आया, एक जगह में पॉइंट में मिला, एक एंगल फॉर्मेशन किया, वो थीटा है, उसका उसी का थीटा/2 वो थीटा होगा ना, वो अल्फा होगा। अच्छा, वो अल्फा है और ठीक है, थोड़ा देख लीजिए। अल्फा है और उधर डेल्टा होता है, तो सर डिफ्लेक्शन एंगल जो होता है वही डिफ्लेक्शन एंगल, हाँ, उसको हम डेल्टा से हम लोग यूज करते थे। आप शायद कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, कोई भी एंगल लीजिए, अल्फा बीटा डेल्टा। हाँ, तो वो डिफ्लेक्शन एंगल आपके अनुसार थीटा है सर, और हाँ, ये वाला हम अल्फा मानते थे जो ओके, कोई दिक्कत नहीं। जी ओके, एक होता है कट ऑफ डिस्टेंस, एक होता है कट आउट डिस्टेंस, ठीक है? जी। तो मेरा, अगर मैं ट्रांजिशन कर प्रोवाइड कर रहा हूँ, देन एट विच पॉइंट आई विल प्रोवाइड कट ऑफ डिस्टेंस, मतलब कौन सा पॉइंट से मैं बोलूंगा कि इसको कट ऑफ डिस्टेंस, एंड कौन सा पॉइंट से कट आउट डिस्टेंस बोलूंगा? ट्रांजिशन कर्व पे कट ऑफ डिस्टेंस एंड कट आउट डिस्टेंस। ओके, ठीक है, आगे और एक बार थोड़ा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? जी आप बेसिकली कोड पढ़ के बहुत ज्यादा डिजाइन किए पर, लेकिन वो जो बीटेक वाला बुक है उसको थोड़ा, अच्छा, आपका एमटेक प्रोजेक्ट किसका ऊपर था?
एमटेक का प्रोजेक्ट मेरा ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक ना डिजाइन? प्लानिंग में भी था, और एक प्रोजेक्ट जो है एग्जैक्टली टॉपिक का नाम थोड़ा बोलिए। पीपल परसेप्शन अबाउट ई रिक्शा इन दरभंगा। मीन्स सर एट दैट टाइम आपका कोरोना था ना हमारे कॉलेज के टाइम में, तो अपने शहर अच्छा, के हाँ ट्रैफिक ओके, कंडीशन दिस पे। इज गुड टू बी ऑनेस्ट, वेरी गुड। जी ठीक है, मतलब आप एमटेक इतना सीरियसली नहीं किया हो? नहीं सर, एमटेक काफी सीरियसली किए हैं। जब प्रोजेक्ट का टाइम आया था ना, तो हम्म। 21 ईस्वी में आके ये कोरोना हम के वजह से जो है, तो हम लोगों को अपने अपने शहर में ही प्रोजेक्ट करने के लिए दिया गया। तो मतलब इस बेस वजह क्या से था आपका प्रोजेक्ट का? ट्रैफिक जैसे हम लोग क्या होता है, डिजाइन में कोई किया, कोई आपका ट्रैफिक में किया, कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट में हाँ, किया? तो ट्रैफिक में ही था प्रोजेक्ट सर। ट्रैफिक में ही था ना? ई रिक्शा का को जो है तो लोग क्यों प्रेफर नहीं कर रहे हैं, इसके वजह इसका जो क्या वजह है, तो इस पे हमारा एक स्टडी था। ओके, मैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, मेरा ये शेड्यूल नहीं था आपको पूछने का, क्योंकि आप तो ऐसे डिजाइन में ही आने वाले हो, तो मैं ट्रैफिक के पास नहीं जा रहा हूँ। जी फिर लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही, ठीक है, जी फॉर एन इंटरेक्शन ओनली, कि अगर मेरा एक ट्रैफिक क्लोज है, ठीक है, रेड लाइट है, जी। तो उस केस में मेरा जाम डेंसिटी मैक्सिमम कौन सा कंडीशन में होता है? यू नो जाम डेंसिटी? यस सर, जाम डेंसिटी आई नो। के जे डिनोट कर रहे हैं उसको, के जे याद है? यस सर, वो जाम डेंसिटी तो याद है हमें। मैक्सिमम कब होता है? जाम डेंसिटी मैक्सिमम होता है जब आपका क्यू आधा होता है, मतलब ट्रैफिक का वॉल्यूम हाँ, आधा है। एग्जैक्टली, दैट इज इक्वल टू kj/2, बट जी, जी। व्हेन दैट ऑकर्स? हाईवे के लिए इंटरव्यू कौन सा कंडीशन में होता है, एनी आइडिया? सारे व्हीकल्स जब रुके। ओके, लेट इट बी, ठीक है, ठीक है। आप एक बार एक काम कीजिए, थोड़ा मतलब आप कोड का ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक आपका, जी जी एंड रेस्ट ऑफ वर्किंग प्रोफाइल विल बी सेम एज यू आर डूइंग करेंटली, ठीक है, जी नो इशू। बट थोड़ा बेसिक क्लियर लेने से हम लोग का भी फ्यूचर के लिए अच्छा है, बराबर? जी जी। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक भी बुक भी पढ़ा कर लीजिए। और देन व्हाई यू वांट टू चेंज दैट कंपनी? बिकॉज प्रोजेक्ट इज ओवर हेयर सर। अब सिर्फ एक कोई साइट पे रह जाए वही काफी है, तो डायरेक्टर का ही गाइडेंस है उसका। इनडायरेक्टली वो बोल Then रहा है why कि you आप have लोग अब chosen अपने। to come directly to Odisha? This is too far from your home, correct? नो, व्हेन आई कैन गो टू नागालैंड देन इट इज Yeah, उड़ीसा yeah, ओनली। yeah, yeah. Correct. Okay. ओके। नागालैंड अच्छा प्लेस है यार, ऐसे मत बोलो। जी, पर लोगों का परसेप्शन उतना अच्छा नहीं है नागालैंड के प्रति। जैसे ही कोई सुनता है कि नागालैंड, तो वो पहले सोचने लगता है कि इंसान इंसान को खा जाता है, ऐसा जगह है। पर ऐसा ओके, कुछ नहीं, हमने ऐसा कुछ फेस नहीं किया सर, बहुत अच्छा है। ओके, फाइन, फाइन। ओके, ओके साकेत, मतलब अच्छा लगा आपसे बात करके। देन नेचर पीपल विल टॉक टू यू, ठीक है, मैं अपना रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है? जी जी। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, फाइन, थैंक यू, थैंक यू।